My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some practice questions on critical reasoning. हम डिस्कस करेंगे critical reasoning के questions from statement assumption, statement and course of action, and statement and inference. Start करते हैं. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. और अगर सेशन पसंद आता है तो make sure to hit the like button as well. You can also join Telegram channel or WhatsApp channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. So first of all, let us discuss a few questions based on course of action. And whenever we are doing a question on course of action, there will be a statement given. Statement will be giving us some problem, okay, some root cause or the problem. And then that will be followed by two statements named as course of action. We will have to identify whether which of those course of actions is feasible. या तो एक feasible होगा कोई या दोनों feasible होंगे, depend करता है context पे. So in any such question, first of all, we have to identify the problem. कि problem क्या है? By reading the statement, problem and then root cause of the problem. And then course of action should be a logical or feasible solution. This should be a logical and feasible solution to the root cause, to our problem. ठीक है, logical and feasible solution to the problem. We have to select such a course of action which is logical and feasible. Practical होना चाहिए, ठीक है, and this should not create another problem. If it creates another problem, तो फिर उसको select नहीं करना है. Also, the course of action should have a predictable outcome. तो ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन लिया जिसके बारे में हमें आउटकम ही पता नहीं है, तो अनप्रेडिक्टेबल आउटकम है, तो ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को नहीं लेना है. प्रेडिक्टेबल आउटकम होना चाहिए. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बाकी तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें और बेटर समझ में आएगा, बट ये कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं जिनको याद रखना है. एडिशनली एक्सट्रीम एक्शंस जो एक्सट्रीमली हार्श एंड नेगेटिव एक्शंस should be avoided. These should not be taken. Avoided unless necessary. भाई कुछ एक्सट्रीम केसेस में नेसेसरी भी हो सकता है, तो वहां की बात अलग है. अदरवाइज एक्सट्रीमली हार्श एंड नेगेटिव एक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. अब क्वेश्चंस लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, देन आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड बी टेकन. ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू, और नीदर. स्टेटमेंट कह रहा है, अ यूनिवर्सिटी हैज ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन साइंस प्रोग्राम्स हैज ड्रॉप्ड बाय 40% इन द लास्ट 3 years. लास्ट 3 years में number of students that have enrolled in science programs has drastically dropped by 40%. That is our problem. Dropped by 40%. Science programs में enrollment has dropped by 40%. An internal review suggests that outdated laboratory equipment is discouraging our students. तो cause भी given है, outdated laboratory equipment, these are the cause, and dropped by 40%. This is our problem. कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जो कि इस कॉज को एड्रेस करे, हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करे. फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द यूनिवर्सिटी शुड इन्वेस्ट इन मॉडर्न लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स. तो इन्वेस्ट करे किसमें? मॉडर्न लेबोरेटरी इक्विपमेंट में. तो डेफिनेटली दिस इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज प्रॉब्लम वॉज आउटडेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट. दिस शुड बी अवर लॉजिकल एंड feasible course of action. Second statement, the university should reduce the number of science programs and focus more on popular courses like business and arts. ये क्या कह रहा है हमारा? क्या करे? क्योंकि यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन साइंस प्रोग्राम रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस कर दे नंबर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स भी. क्या ये सही स्टेप होगा? क्या ये स्टेप रिएक्शनरी स्टेप नहीं है कि भाई एनरोलमेंट रिड्यूस हो गया तो फिर रिएक्शनरी स्टेप हमने ले लिया कि प्रोग्राम रिड्यूस कर दो, ज़्यादा फोकस करो उनमें जहाँ पे एनरोलमेंट आ रहा है, बिजनेस में और आर्ट में. बट क्या ये सही स्टेप होगा? भाई शॉर्ट टर्म में लग सकता है कॉस्ट कटिंग हो जाएगा इससे, बट दिस इज नॉट द राइट स्टेप. दिस इज नॉट द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम है एनरोलमेंट कम हुआ है, तो एनरोलमेंट कैसे इंक्रीज हो इस डायरेक्शन में सोचना है. प्रॉब्लम है आउटडेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट, सो दैट इज आवर रूट कॉज. तो उसको एड्रेस करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, बट सेकंड स्टेप इज रिएक्शनरी स्टेप, एंड दिस इज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल हैम्पर एकेडमिक डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी. उल्टा तुमने साइंस के प्रोग्राम ही कम कर दिया, ठीक है. सो दिस इज नॉट द राइट एक्शन. सेकंड एक्शन नहीं लेना है, फर्स्ट वाला एक्शन इज करेक्ट वन. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओनली कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 फॉलोज. क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर हुआ? क्या तुमने भी यही सेलेक्ट किया था? अगर नहीं किया था तो आगे से करेक्ट करना है, ठीक है. ये जो जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है ना, इनको करेक्ट करते चलना विद एवरी क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग.
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट कह रहा है अ रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट ग्राउंड वाटर लेवल्स इन द सिटी हैव डिप्लीटेड बाई 40% इन द लास्ट 5 years। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ग्राउंड वाटर लेवल्स इन द सिटी हैव डिप्लीटेड बाई 40%। Depleting groundwater levels is the problem, and the reason is also given that unchecked boring by private residential complexes is the issue. This is our root cause, one of the causes, major causes. ठीक है, course of action number 1, the municipal corporation should immediately ban all private water boring and seal existing bore wells. Course of action number 2, the water department should impose a heavy cess on groundwater extraction and promote rainwater harvesting mandatorily. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इमीडिएटली बैन ऑल प्राइवेट वाटर बोरिंग एंड सील एग्जिस्टिंग बोरवेल्स। तो क्या ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं है कि सबको बैन कर दो? या तो पहले चेक करो, पहले तुम एक कमेटी बिठाओ, आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उनको बैन करो तो समझ में आता है। सबको बैन कर दो इमीडिएटली, तो दिस इज नॉट राइट स्टेप, हार्श स्टेप है, निगेटिव स्टेप है, एक्सट्रीम स्टेप है। तो दैट इज वाई दिस शुड नॉट बी टेकन। ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, बट बहुत ज़्यादा आगे चले गए इसमें, बहुत ज़्यादा आगे चले गए, बहुत एक्सट्रीम डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस शुड नॉट बी टेकन। Second, the water department should impose a heavy cess on groundwater extraction and promote rainwater harvesting mandatorily. तो even if mandatorily mentioned है यहाँ पे, but promoting rainwater harvesting तो एक अच्छे cause के लिए mentioned है, और ये हमारा प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेगा। ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो गए हैं, तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारा यूज़ है ग्राउंड वाटर लेवल्स को डिप्लीट करना कम होगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो वाटर डिपार्टमेंट शुड इंपोज हैवी सेस, और एक हैवी सेस इंपोज करने से भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो वहां से भी एक चेक एंड बैलेंस स्टैब्लिश होगा, क्योंकि अनचेक्ड है इसलिए प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो सेकंड स्टेप शुड बी टेकन, फर्स्ट शुड नॉट बी टेकन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हार्श स्टेप, second should be taken, only second follows in this case. Clear? Next question. Statement is saying concerns have risen about air pollution in Indian cities. A recent report by the World Health Organization WHO states that of the 20 most polluted cities in the world, 13 are in India. 20 में से top 20 in the world में से 13 are in India. And definitely this is not something जिसके लिए क्रेडिट ले सकें, तो दिस इज समथिंग जिस पे कंसर्न होना चाहिए और जो इसका सॉल्यूशन हमें देखना ही चाहिए। ठीक है, और दिस इज एक्चुअल सिनेरियो। तो कंसर्न्स हैव रीजन अबाउट एयर पॉल्यूशन, so this is our problem. And in general, so course of action number 1, pollution committee should immediately take certain measures to control the pollution levels in India. This is a affirmative step. ठीक है, immediately take certain measures, क्या measures है पता नहीं है, बट जो भी measures लेने हैं to control the pollution levels, so this is a right step. Second one, licenses of polluting industries should be cancelled and owners should be put behind the bars. अब अगेन बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि ओनर्स को उठा के जेल में डाल दो, लाइसेंस कैंसिल करो और उठा के जेल में डाल दो, एक्सट्रीम स्टेप। ठीक है, लाइसेंसेस भी अगर कुछ पहले भाई कमेटी बैठ के एनालाइज करे, उसके बाद में हार्श एक्शन हो तो समझ में आता है, बट डायरेक्टली तुम क्या करो, सारे के सारे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का लाइसेंस कैंसिल कर दो और उनको जो भी ओनर्स हैं उनको उठा के जेल में डाल दो। सो दिस इज नॉट अ राइट स्टेप, again harsh and extreme step. So first should be following and second should not be followed. Next question. Statement is saying company X has been incurring financial losses for the past 3 years. As per the internal study, it has been found that 50% of the employees are above the age of 50 years. तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम क्लियरली है कि कंपनी एक्स हैज बीन इनकरिंग फाइनेंशियल लॉसेस फॉर पास्ट 3 years. तो फाइनेंशियल लॉसेस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू. An internal study has found out that 50% of the employees are above the age of 50 years. Okay. Course of action number 1. Company X should take a loan from financial institutions to invest in new technology and training programs. Statement number 2. Company X should gradually reduce its older workforce through voluntary retirement schemes and aggressively recruit younger employees. तो क्या पॉज करके अपने तुमने आइडेंटिफाई किया था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? अब देखो स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए ट्रैप सेट कर रहा है। ट्रैप क्या सेट कर रहा है? क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दो चीजें मेंशनड है. वन थिंग दैट इज मेंशनड इज दैट द कंपनी एक्स इज इनकरिंग फाइनेंशियल लॉसेस फॉर पास्ट 3 years. सेकंड थिंग दैट इज मेंशनड इज दैट the internal study has found that 50% of employees are above the age of 50 years. बट क्या ये जो फाइंड आउट किया है उन्होंने, क्या ये कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है? ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है. स्टेटमेंट ओनली मेंशंस
that as per the study 50% employees are above the age of 50, but this might not be the cause, क्योंकि ये कॉज है नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ये हमें गिवन नहीं है, रूट कॉज इज नॉट मेंशन्ड, तो रूट कॉज कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कुड बी ओल्डर एम्प्लॉइज, पॉसिबल है, हो सकता है, बट है या नहीं है पता नहीं, कुड बी, ठीक है, इट कुड बी ट्रेनिंग इश्यूज की ट्रेनिंग नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, इट कुड बी टेक्निकल इश्यूज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बेनिफिट हो, बट क्या है ये नहीं पता है, तो नन ऑफ दिस इज नोन एग्जैक्टली विद द गिवन स्टेटमेंट। पहला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कंपनी एक्ट शुड टेक अ लोन, ऑलरेडी दे आर इनकरिंग अ फाइनेंशियल लॉस, फिर से एक एडिशनल लोन ले लें तो बर्डन अपने को फाइनेंशियली बढ़ा लें और क्या करें उससे, इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, बट क्या ये इशू है, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि रूट कॉज नहीं पता है, तो दिस सीम्स टू बी अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बट ये कब सही डायरेक्शन में स्टेप लग रहा है, जबकि हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि कंपनी में जो इशू आ रहा है फाइनेंशियल लॉसेस का, दैट इज बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बट ये कहीं पे भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो हमें अपने मन से कोई भी एजम्पशन नहीं लेना है, तो दिस इज नॉट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता इसका आउटकम क्या आएगा, आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि रूट कॉज क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो क्या ट्रेनिंग इशू है नहीं पता है, तो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेप शुड नॉट बी टेकन, दिस शुड नॉट फॉलो। Second statement, Company X should gradually reduce its older workforce through voluntary retirement scheme and aggressively recruit younger employees। तो क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअली रिड्यूस करें अपना ओल्डर वर्कफोर्स को थ्रू VRS एंड देन एग्रेसिवली रिक्रूट करें यंगर एम्प्लॉयज़ को, बट क्या ओल्डर वर्कफोर्स एक इशू है नहीं पता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना बता रहा है 50% एम्प्लॉयज़ आर अबव द एज ऑफ 50, ठीक है, नॉट नेसेसरी दे आर द रूट कॉज, तो जब तक हमें ये श्योर नहीं है कि वो रूट कॉज है तो उनको रिड्यूस करके और यंगर एम्प्लॉयज़ को लाना, will that be a right course of action in the right direction, we have no idea, so that is why this should also not follow, so neither one nor two will be the right answer in this case। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए हो, ठीक है, तो स्टेटमेंट को देख के हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, अपने हिसाब से एजम्पशंस नहीं लेनी है कि हाँ ये स्टेप बेटर होगा, ये स्टेप लग रहा है बेटर होगा, तो सिर्फ लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट कौन सी प्रॉब्लम बता रहा है, स्टेटमेंट कौन सा रूट कॉज बता रहा है, तो अगर स्टेटमेंट ने रूट कॉज एज सच मेंशन नहीं किया है तो हमारे मन से जो हमें लग रहा है दैट माइट नॉट ऑलवेज बी द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, क्लियर है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। The meteorological department has predicted a severe cyclone hitting the coastal districts in the next 48 hours, which is likely to cause massive infrastructure damage। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है एक सीवियर साइक्लोन जो कि हिट करेगा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, विच इज लाइकली टू कॉज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमारा एक सीवियर साइक्लोन दैट इज गोइंग टू हिट, सीवियर साइक्लोन नहीं, सीवियर साइक्लोन दैट इज गोइंग टू हिट द कोस्टल districts in the next 48 hours। First course of action, the district administration should immediately evacuate people from the coastline to safer shelters। So this should definitely follow immediate evacuation of the people, क्योंकि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने वाला है, तो दे शुड इमीडिएटली बी इवैक्यूएटेड, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सेकंड वन, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शुड कट ऑफ पावर सप्लाई टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट इमीडिएटली टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। देखो सेकंड स्टेप में कैच है, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में कैच है, कैच क्या है कि हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स सिवियर साइक्लोन इज गोइंग टू हिट, ठीक है, और अभी से इमीडिएटली इज इंपॉर्टेंट हियर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शुड कट ऑफ पावर सप्लाई। तो क्या इमीडिएटली पावर सप्लाई कट करना एक राइट डिसीजन होगा, पावर सप्लाई कट करना चाहिए कब, व्हेन द स्टॉर्म हिट्स, तो देन टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स पावर सप्लाई शुड बी कट ऑफ, बट इमीडिएटली कट ऑफ करना इज नॉट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, तो दैट इज वाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी सब कुछ करेक्ट है, बट ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है इसकी वजह से, अगर इमीडिएट नहीं होता तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक होता, दैट इज वाई सेकंड स्टेप शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली, तो फर्स्ट फॉलोज ओनली, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है, ठीक है, सो दीज वर आई गेस अवर क्वेश्चंस ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अजम्पशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अजम्पशन। अब अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ऑलवेज कम्स बिफोर द स्टेटमेंट, ठीक है, तो अजम्पशन इज सेम एज द फाउंडेशन, एक फाउंडेशन जिसके ऊपर की बिल्डिंग खड़ी है हमारी, हमेशा वैसे ही समझोगे तो हमेशा आसानी रहेगा कि अजम्पशन है स्टेटमेंट का फाउंडेशन, ठीक है, जो स्टेटमेंट मेंशन नहीं है बट स्टेटमेंट को सही होने के लिए उस अजम्पशन का होना जरूरी है, तो अजम्पशन शुड बी द assumptions are implicit in the statement, not said explicitly, but they are implicit, they are inside the statement, they have to be there for the statement to remain valid, ठीक है, for the statement to remain valid। तो
हमें क्या कैसे चेक करना पड़ेगा assumption को? विल बी चेकिंग विद नेसेसिटी। तो अगर एक क्वेश्चन में हमें एक assumption गिवन है जो हमें आइडेंटिफाई करना है whether that assumption is implicit or not, we'll be checking whether we reject, if we reject that assumption, यानी कि अगर फाउंडेशन को हटा लें तो अगर स्टेटमेंट गिर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, यानी कि दैट फाउंडेशन इज नेसेसरी। बट अगर फाउंडेशन को हटाने के बाद भी बिल्डिंग खड़ी रहती है तो दैट इंप्लाइज कि दैट फाउंडेशन इज नॉट नेसेसरी, यानी कि दैट इज एक्चुअली नॉट assumption। ठीक है, assumption वही है जिसके ऊपर स्टेटमेंट टिका हो। तो अगर assumption को हटाया, स्टेटमेंट को गिर जाना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेटमेंट अफेक्ट ही नहीं होता है assumption को हटाने से, यानी कि दैट इंप्लाइज दैट इज नॉट अ फाउंडेशन, दैट इज नॉट assumption। ओके, क्वेश्चंस पे करेंगे अब और बेटर समझेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट गिवन है टू सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जाम यू मस्ट इनरोल इन अवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्रैश कोर्स। एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मेंशन है कि अगर एग्जाम में सक्सीड करना है अपकमिंग एग्जाम में तो यू मस्ट इनरोल इन अवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्रैश कोर्स। assumption number 1, the crash course covers the necessary topics required for the exam. assumption number 2, no student can succeed in the exam without joining a coaching institute. तो पहला assumption क्या कर रहा है? क्रैश कोर्स कवर्स द नेसेसरी टॉपिक्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। अब क्या ये फाउंडेशन है? अगर हम इसका ऑपोजिट लें, ठीक है, निगेट करो इसको, और निगेट करने के बाद अगर हमारा स्टेटमेंट बेकार हो जाता है, यानी कि फाउंडेशन गिर हटाते ही अजम्पशन हमारा जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, तो दैट इंप्लाइज कि ये वैलिड अजम्पशन है, यानी कि दिस इज अ इम्प्लिसिट अजम्पशन, ये होना ही चाहिए। तो क्रैश कोर्स कवर्स, हम कहेंगे नहीं कवर करता ये। तो अगर क्रैश कोर्स डज नॉट कवर द नेसेसरी टॉपिक्स, तब क्या मतलब है उस क्रैश कोर्स करने का? कोई पॉइंट नहीं है। फिर क्यों करोगे उसको क्रैश कोर्स को? क्यों सक्सेस मिलेगा तुमको? तो इट मस्ट कवर, है कि नहीं? इट मस्ट कवर, बिकॉज इफ इट डज नॉट कवर द नेसेसरी टॉपिक्स तब तो फिर गड़बड़ है। तो दिस मस्ट बी नेसेसरी assumption. It should cover, crash course should cover the necessary topics required for the exam. Then only you will be succeeding in the exam by enrolling in that crash course. ठीक है, तो फर्स्ट इज अ वैलिड assumption. सेकंड वन, नो स्टूडेंट कैन सक्सीड इन एग्जाम विदाउट ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये अपने आप में ही एक्सट्रीम है कि जो स्टूडेंट कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेगा दे विल नॉट सक्सीड। तो अगेन एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो कि सक्सीड करे एग्जाम में विदाउट ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो दिस इज नॉट अ वैलिड assumption. There can always be some or even many students who are not joining any coaching and yet they are succeeding in the exam. Second one is a wrong assumption. First is implicit only. Okay, clear? अगर यहाँ पे होता है कि योर चांसेस आर इंक्रीजिंग विद जॉइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग दैट इज मॉडरेट, तो डेफिनेटली वो फिर हमारा करेक्ट assumption होता। बट नो स्टूडेंट कैन सक्सीड इन द एग्जाम, दैट इज एक्सट्रीम एंड हार्श assumption that definitely does not withstand the test. Okay, next question. Statement is given, a city plans to introduce a congestion fee for vehicles entering the central business district to reduce traffic jams. It is planning to introduce a congestion fee for vehicles entering the central business district to reduce traffic jam. तो क्या होगा इससे? क्यों कंजेशन फी इंट्रोड्यूस किया होगा? सो दैट व्हीकल्स दैट आर एंटरिंग द CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक जैम रिड्यूस हो। कब रिड्यूस होगा? जब नंबर ऑफ व्हीकल रिड्यूस होंगे, तभी तो होगा ना। कंजेशन फी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज द पर्पस, दैट शुड बी द पर्पस। क्योंकि अगर व्हीकल्स का नंबर रिड्यूस ही नहीं हो रहा है तो पॉइंट ही क्या हुआ फी को इंट्रोड्यूस करने का? इजंट इट सो? assumptions पढ़ते हैं। पहला assumption कह रहा है ड्राइवर्स विल चेंज देयर ट्रैवल बिहेवियर इफ एन एडिशनल कॉस्ट इज इम्पोज्ड। अपना बिहेवियर चेंज करेंगे आफ्टर एडिशनल कॉस्ट। तो क्या ये assumption होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये assumption होना चाहिए, क्योंकि अगर ये assumption नहीं है, ड्राइवर्स विल नॉट चेंज देयर बिहेवियर, तो अगर अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करेंगे, इसका ऑपोजिट लो, निगेट करो इसको, तो ड्राइवर्स विल नॉट चेंज देयर बिहेवियर, तो अगर अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करेंगे तो फिर कंजेशन फी को इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट ही क्या हुआ फिर? Definitely they are going to change their behavior. There will be lesser number of vehicles, only then this additional cost makes sense. So yes, first should be a valid assumption. Second statement, public transport has enough capacity to absorb commuters who shift away from private vehicles. तो होगा क्या, जैसे ही तुमने कंजेशन फी इंट्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ व्हीकल्स इज ड्रॉपिंग इन द CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बट अगर नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ड्रॉपिंग तो पब्लिक व्हीकल्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, नंबर ऑफ पीपल तो आएंगे अभी भी। ठीक है, सो उनको एकोमोडेट करने के लिए यू विल नीड पब्लिक व्हीकल्स। और अगर ये पॉलिसी बनाया है सिटी ने तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव थॉट आउट अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अगर नहीं सोचा है तो पॉलिसी तो फेल हो जाएगा। भाई नंबर प्राइवेट व्हीकल्स को तुमने रिड्यूस कर दिया, पब्लिक व्हीकल्स इतने है ही नहीं, तो अल्टीमेटली दिस पॉलिसी विल फेल एनीवे. So that is why this second assumption is also correct, that public transport has enough capacity, because if it does not have enough capacity तो लाना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही इस पॉलिसी का मतलब है. So that is why second statement is also correct assumption. This must have enough capacity to absorb the commuters who are shifting away from private vehicles. Both statements are correct. Both assumptions are implicit. So option C हमारा आंसर होगा. Both are implicit. Okay. Next question. Next one is the CEO stated we need to foster a culture of innovation if we want to survive in this competitive market. CEO ने, किसी कंपनी के CEO ने कहा कि we need to foster, nurture a culture of innovation if we want to survive in this competitive market.
अजम्पशन नंबर 1, द कंपनी करेंटली लैक्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। अगर हम निगेट करें इसको कि कंपनी डज नॉट लैक अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, तो अगर कंपनी लैक ही नहीं करती है जिस चीज़ को, तो उसको नर्चर क्या करना है, उसको फॉस्टर क्या करना है। ठीक है, तो इफ वी हैव टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, दैट इम्प्लाइज देयर इज अ लैक, दैट इम्प्लाइज देयर इज अ लैक। तो दिस इज अ करेक्ट अजम्पशन। जो कम है उसी को तो बढ़ाओगे ना, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको क्या बढ़ाओगे। ठीक है, सो सेकंड अजम्पशन, द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट आर यूजिंग इनोवेशन एज अ टूल फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे फंस सकते हो, क्योंकि हमारा सीईओ ने क्या कहा है, सीईओ ने कहा है फॉस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन इफ वी वांट टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो सीईओ हैज सेड दैट मार्केट इज कॉम्पिटिटिव एंड वी हैव टू सर्वाइव, एंड टू सर्वाइव वी नीड अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, मार्केट इज कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं ये इसके बारे में मेंशन नहीं है। कॉम्पिटिटर्स माइट बी यूजिंग इनोवेशन एज अ टूल, दे माइट हैव यूज्ड एनी अदर थिंग एज अ टूल। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग इनोवेशन एज अ टूल और नॉट, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स मे नॉट बी यूजिंग इनोवेशन एज अ टूल, बट येट दे माइट बी सक्सीडिंग फॉर सम अदर रीजन। बट हमें सर्वाइव करना है तो हमें इनोवेशन चाहिए। ठीक है, सो दिस सेकंड assumption is not necessary for the statement to withstand. That is why only first is needed. ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज नॉट इम्प्लिसिट। कॉम्पिटिटर्स हो सकता है कोई और टूल यूज कर रहा हो, भाई किसी और तरह से वो सक्सीड कर रहे हो, हमें सक्सीड करना है तो हमें तो इनोवेशन करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइसेस लिमिटेड है, उनके पास हो सकता है बेहतर पैसा हो। ठीक है, डिपेंड करता है भाई अंबानी हो कि वो तो पैसा उड़ा रहे हैं, नहीं कर रहे इनोवेशन, बट हमें तो इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर उनसे compete करना है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो हमें तो कुछ और सोचना पड़ेगा। हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस है, तो डिपेंड करता है। सो दैट इज वाई फर्स्ट अजम्पशन तो हमारा वैलिड है, सेकंड वन इज नॉट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट नहीं है, पॉसिबल है, इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है एक्स एयरलाइन हैज डिसाइडेड टू चार्ज पैसेंजर्स फॉर चेक इन बैगेज दैट एक्सीड्स 10 kg अनलाइक द अर्लियर लिमिट ऑफ 15 kg। सिर्फ इतना स्टेटमेंट है कि एक्स एयरलाइन इज हैज डिसाइडेड टू चार्ज पैसेंजर्स फॉर चेक इन बैगेजेस दैट एक्सीड्स 10 kg। तो पहले लिमिट था हमारा 15 kg का, बट नाउ द लिमिट इज 10 kg। तो दे हैव रिड्यूस्ड द लिमिट, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट। क्या रीजन है ये तो मेंशन नहीं है। अजम्पशन नंबर 1, मोस्ट पैसेंजर्स कैरी बैगेज वेइंग बिटवीन 10 kg एंड 15 kg। अजम्पशन नंबर 2, द एयरलाइन इज फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस एंड नीड्स टू जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अब इनमें से बताओ कि कौन सा अजम्पशन वैलिड होगा। पहला कह रहा है मोस्ट पैसेंजर्स कैरी बैगेज वेइंग बिटवीन 10 kg एंड 15 kg। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर एयरलाइन ने चेक इन बैगेज का लिमिट 15 से 10 kg किया है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन और देयर मस्ट बी सम प्रैक्टिकलिटी ऑफ एज वेल, है कि नहीं। अगर सारे के सारे पैसेंजर्स का जो वेट है वो 15 kg से ऊपर ही रहता था, तो देयर इज नो पॉइंट। अगर सारे के सारे पैसेंजर्स का जो बैगेज का वेट है दैट वाज लेस देन 10 kg, अगेन देयर इज नो पॉइंट। तो देयर मस्ट बी सम पैसेंजर्स हुज बैगेज वेट इज बिटवीन 10 to 15। ये तो श्योर है कि देयर मस्ट बी सम पैसेंजर हुज बैगेज वेट इज बिटवीन 10 to 15 kg, तभी इस पॉलिसी को लाने का कोई मतलब है। इजंट इट सो? बट आर दोज द मोस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स? वी हैव नो आइडिया। So that is why this most is the problem here. मोस्ट के अलावा बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। सम पैसेंजर्स मस्ट बी देयर दैट कैरी बैगेजेस वेइंग बिटवीन 10 kg एंड 15 kg। तो सम या सिग्निफिकेंट होता, देन दिस वुड हैव मेड सेंस, बट बिकॉज ऑफ मोस्ट दिस इज नॉट अ करेक्ट assumption। ठीक है, नॉट इंटायरली रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ मोस्ट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि सम पैसेंजर्स होंगे तो डेफिनेटली सम तो होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे, तो उनके लिए पॉलिसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, so there must be significant number of passengers who are carrying baggage weighing between 10 to 15 kg, but most not necessarily. So that is why first assumption is incorrect only because of most. Second assumption, the airline is facing financial losses and needs to generate extra revenue. We have no idea कि ये financial losses की वजह से किया है या किसी और वजह से किया है। ठीक है, अपने ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी के थ्रू किया है या जिस भी वजह से किया, ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन के किस वजह से किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए किया है या फिर लॉसेस की वजह से किया है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये assumption नहीं ले सकते। देयर कुड बी एनी रीजन व्हाट्सएवर। ठीक है, सो दैट इज वाई सेकंड assumption भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे नीदर आंसर होगा, नीदर वन नॉट टू। ना तो पहला assumption करेक्ट है ना तो दूसरा assumption करेक्ट है। देयर कुड बी एनी रीजन, तो दैट इज वाई सेकंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। और इनको निगेट करेंगे तो निगेट करने से ही मामला अपना कि अगर हम कहेंगे मोस्ट पैसेंजर्स डज नॉट कैरी, देयर माइट स्टिल बी सम पैसेंजर्स, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट हैव अ बैगेज weighing between 10 to 15 kg. Similarly, the airline might not be having facing any financial losses, might not need to generate extra revenue, but due to operational efficiency, ठीक है, अपना बस लोड कम करने के लिए एयरलाइन में सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया हो, तो दैट कैन डेफिनेटली बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है इफ यू वांट अ हैसल फ्री हॉलीडे इन यूरोप चूज आवर ट्रैवल पैकेज। ट्रैवल एजेंसी वाई का एडवर्टाइजमेंट होगा। इफ यू वांट अ हैसल फ्री हॉलीडे इन यूरोप चूज आवर ट्रैवल पैकेज। assumption number 1, ट्रैवल एजेंसी वाई इज द ओनली एजेंसी प्रोवाइडिंग पैकेज फॉर यूरोप। ओनली, या कहीं पे ये मेंशन है?
भाई इफ़ यू वांट हैसल फ्री, अपना एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने कि अगर हैसल फ्री हॉलीडे चाहिए यूरोप में तो चूज अवर ट्रैवल पैकेज, बट देयर माइट बी अदर ट्रैवल पैकेजेस एज वेल, तो ओनली की वजह से दिस स्टेटमेंट assumption इज नॉट करेक्ट. Second one, traveling to Europe can be associated with hassles if not planned well. तो hassle free holiday, if you want hassle free holiday, तो choose our travel package. तो there must be some reason for writing this, isn't it so? तो अगर traveling to Europe और again लिखा है can be, must be नहीं, can be, possibility है, तो can be associated with hassles if not planned well, तो this is a correct assumption. क्योंकि अगर तुमने नहीं भी वेल प्लान किया तब भी कोई हैसल नहीं होता है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब फिर इस एडवर्टाइजमेंट में इस लाइन को मेंशन करने का देयर वाज नो पॉइंट. अगर हम कह दें कि ट्रैवलिंग टू यूरोप इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी हैसल्स एट ऑल इफ नॉट प्लान्ड वेल, देन डेफिनेटली द स्टेटमेंट फॉल्स. फिर द स्टेटमेंट मेक्स नो सेंस. दैट इज व्हाई सेकंड इज अ करेक्ट assumption, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट इन दिस केस. ओके, क्या ये बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग सिलोजिज्म के. पहले एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लें कुछ बेसिक बातें सिलोजिज्म पे. There can be 4 or 5 types of statements in syllogism. One is all ARB. If it is mentioned that all ARB, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा, हमें उनको एज्यूम करना है कि दोज स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स और फिर अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा. तो इफ ऑल ARB, तो दिस इंप्लाइज दैट A शुड बी अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, सो इफ ऑल ARB, तो सेट ऑफ A शुड बी इनसाइड सेट ऑफ B, और देयर कुड बी नो ARB, नो ARB, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा इन सच ए केस. रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, एंड देन वी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और फिर उस लाइन पे क्रॉस लगा दिया, यानी कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी. ऑल ए आर बी, तो ए इज इनसाइड बी, नो ए आर बी, यानी कि ए एंड बी आर डिसजॉइंटेड, उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. देन थर्ड केस कुड बी सम ए आर बी, नॉट ऑल बट सम ए आर बी. नॉट ऑल नहीं, मतलब मेंशन है सम ए आर बी. ठीक है, तो सम ए आर बी में क्या कह रहा है? सम ए आर डेफिनेटली बी. सम ए आर बी इंप्लाइज दैट सम ए आर डेफिनेटली बी. ये कुछ और नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि सम ए आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ बी. ए और बी में कुछ तो ऐसा है जो कि कॉमन है. बात कर रहा है बेसिकली इफ द फर्स्ट सेट इज ए, सेकंड सेट इज बी, तो डेफिनेटली सम एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो इन बी. ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को कि जो हमारा कॉमन एलिमेंट है ये सर्टेन है. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, बट वी आर सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, दैट सम ए आर डेफिनेटली बी. सम ए आर बी इंप्लाइज दैट सम ए आर डेफिनेटली बी. ओके, ऑल ए कैन ऑल्सो बी बी, वो भी एक पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे ए बी हो जाएं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे बी ए हो जाएं, बट सम ए आर फॉर श्योर बी, ये तो पक्की बात है. तो नो ए आर बी यहाँ से नहीं हो सकता है. ठीक है, ऑल ए आर बी कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल हियर, बट नो ए आर बी, नो ए आर बी, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ए आर डेफिनेटली बी, दैट इज वाई. और लास्ट केस बच गया हमारा कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी. इन दिस केस अगर हम डायग्राम बनाते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन दिखाते हैं, तो सर्टेन वाला पार्ट कौन सा होगा? जो कि नॉट बी वाला है, कि सम ए आर एटलीस्ट देयर विच आर नॉट बी, यानी कि दिस पार्ट विल बी सर्टेन, दिस पार्ट इज नॉट सर्टेन. तो सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी. ऐसा भी हो सकता है कि सारे ए नॉट बी हो. ठीक है, यानी कि ऑल ए आर आउटसाइड बी, यानी कि नो ए इज बी, ये भी पॉसिबल है. यहाँ से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि नो ए आर बी, दिस इज पॉसिबल, बट ऑल ए आर बी, दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी. ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी को बनाने का एक डायग्राम का तरीका ये हो सकता है, या फिर यू कैन मेक ए एंड बी सेपरेटली. ए बनाया और बी बनाया. अब क्योंकि सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी, तो अब ए के अंदर तुमने एक पार्ट लिया, एक छोटू सा पार्ट लिया, एंड दिस पार्ट शुड नॉट बी बी, तो इसको और बी को मिलाओगे एक लाइन से और क्रॉस मार दिया, तो दिस पार्ट ऑफ ए शुड नॉट बी बी. तो एक तरीका ये हो गया इसको बनाने का. क्या ये समझ पाए? ठीक है, या फिर ऐसे बना सकते थे कि तुमने ए बनाया और नॉट बी बनाया, बी ना बना के नॉट बी बनाया. ठीक है, ए एंड दिस इज नॉट बी,
तो ए और नॉट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। वैसे ध्यान रखना है कि नॉट बी वाला तुमने सेट बनाया है, बी का सेट नहीं बनाया। तो ये तीनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तीनों चलेंगे, बात एक ही है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्वेश्चंस पे अकॉर्डिंगली समझते चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट गिवन है, 2 कंक्लूजन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच कंक्लूजन फॉलोज और वेदर नीदर फॉलोज। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा ऑल कर्टेंस आर रॉड्स। ऑल कर्टेंस आर रॉड्स यानी कि कर्टेंस को हम बनाएंगे इनसाइड द रॉड्स, सेट ऑफ कर्टेंस विल बी इनसाइड द रॉड्स। ऑल कर्टेंस आर रॉड्स, दिस इज द सेट ऑफ कर्टन, दिस इज द कर्टन ऑफ सेट ऑफ रॉड्स। सम रॉड्स आर शीट्स, ठीक है, तो सम रॉड्स आर शीट्स यानी कि रॉड्स और शीट में कुछ तो कॉमन है, तो जो कॉमन है वहां पे मार्क कर दो, दैट वी आर सर्टेन अबाउट दिस पार्ट। सम शीट्स आर पिलोज, अगेन जो हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम को ऐसे ही बनाना है कि जो जितना हमें गिवन है बस उतना ही हमें डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है, अननेसेसरली अब जैसे हमें बना यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, सम शीट्स आर पिलोज, अब हमें शीट और पिलो में कुछ कॉमन दिखाना है, तो पिलो का डायग्राम बहुत तरह से बना सकते हैं। ठीक है, पिलो का डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है कि हम पिलो का डायग्राम बनाए और वो यहाँ पे भी इंक्लूड कर दे, पर वो गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि पिलो और रॉड के बारे में कोई बात नहीं की गई, पिलो और कर्टन के बारे में कोई बात नहीं की गई, दैट इज वाई पिलो का डायग्राम बनाएंगे ऐसा। और सर्टेन क्या है कि सम शीट्स आर डेफिनेटली पिलोज यानी कि दिस पार्ट इज सर्टेन, तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिमाग ओपन रखना है अपना कंक्लूजन देखते समय, बट दिस इज अवर प्रॉपर डायग्राम। तो फर्स्ट कंक्लूजन, सम पिलोज आर ऑड्स, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट सम पिलोज आर ऑड्स? अभी डायग्राम में नहीं दिख रहा है, कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हाँ, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि कैन बी रॉड्स तो पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता था, हम डायग्राम भाई ऐसे बनाते अगर इस तरह का, तो पॉसिबल हो जाता। और कोई भी स्टेटमेंट हमारा, सारे स्टेटमेंट तब भी ट्रू रहते। तो पॉसिबल है, सम पिलोज कैन बी रॉड्स लिखा होता तो करेक्ट होता, बट सम पिलोज आर रॉड्स लिखा है, दैट इज वाई दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है, कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, सम रॉड्स आर कर्टेंस, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो यस, सम रॉड्स आर डेफिनेटली कर्टेंस, बिकॉज ऑल कर्टेंस आर रॉड्स, तो सम रॉड्स आर कर्टेंस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड वाला तो करेक्ट है, ये तो वैसे ही फॉलो कर रहा है, हमारे पहले स्टेटमेंट से ही फॉलो कर रहा है, तो सेकंड वाला इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ओनली टू फॉलोज। ओके, क्लियर है, समझ पा रहे हो ये बातें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डिटेल में और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो सिलोजिज्म के या सिलोजिज्म को और भी बेसिक से देखना हो, तो एक प्रॉपर सेशन मैंने लिया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर स्नैप की चेकआउट कर लेना वहाँ से, तो वहाँ से तुम्हें सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ और सिलोजिज्म पे सेपरेट प्रैक्टिस भी लाऊंगा, बट अभी तो फिलहाल तो यही है। तो स्टेटमेंट नंबर, फिर से स्टेटमेंट देखो और एक बार अपने एंड पर प्रॉपर डायग्राम बनाओ, उसके बाद में कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन में गिवन है पॉसिबिलिटी वाला भी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, सर्कल्स और स्क्वायर्स में क्या कॉमन है? कुछ तो कॉमन है, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, दिस पार्ट इज कॉमन फॉर श्योर। ऑल स्क्वायर्स आर पैटर्न्स, तो ऑल स्क्वायर्स आर पैटर्न्स यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर इनसाइड द सेट ऑफ पैटर्न्स। सम पैटर्न्स आर इल्यूजन्स, तो पैटर्न्स और इल्यूजन में कुछ तो कॉमन है, मेक दैट कॉमन। फर्स्ट कंक्लूजन अगेन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये डेफिनेटनेस की बात नहीं कर रहा है। सम सर्कल्स बीइंग इल्यूजन इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा भी डायग्राम बना सकते थे इल्यूजन का, जहाँ पे कि कुछ सर्कल भी आया था। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन जाता तो कोई दिक्कत थोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज पॉसिबल। पॉसिबल कब नहीं होगा? पॉसिबल तब नहीं होगा जब कहीं पे बीच में नो वाला मामला आ जाए। ठीक है, जब कहीं पे बीच में क्रॉस लगाओ तब पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल लें कि लेट अस से देयर इज सेट ए विच इज इनसाइड सेट बी। ओके, और फिर हमने कहा देयर इज अनदर सेट सी एंड देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट बी एंड सेट सी, दिस इज आवर डायग्राम। तो वी आर डेफिनेट, अगर क्वेश्चन कहे कि ए सम ए कैन बी सी, नाउ सिंस पूरा का पूरा ए का सेट इज इनसाइड बी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। लिखा है कैन बी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो ए कैन बी सी, बिकॉज ऑल ए आर इनसाइड बी एंड नो बी कैन बी सी, दैट इज वाई नो ए कैन बी सी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट जस्ट इन केस देयर वाज अनदर सेट डी एंड डी, बिटवीन डी एंड बी सम पार्ट इज कॉमन। ठीक है, और फिर क्वेश्चन कहे कि सम, दिस इज सेट डी, सम डी कैन बी सी, तो यस दिस इज पॉसिबल, कैन बी अगेन। ठीक है, अगर ये कहे कि सम डी मस्ट बी सी, तो अगेन नॉट करेक्ट, बट कैन बी इज पॉसिबल, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ डी डेफिनेटली ऐसा है, ठीक है, जो कि हो सकता है, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, फिर से अगेन ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या कहा, सम डी इज सी,
सम डी इज बी, ठीक है, ये तो गिवन है हमको, तो ऐसा भी हो सकता है सारा का सारा डी इनसाइड द बी हो, बट अगेन वो पॉसिबिलिटी है, जरूरी तो नहीं है, तो ये पॉसिबल जरूर है, दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल डेफिनेटली, सर्टेन होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्लियर है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, ऑल इल्यूजन्स आर स्क्वायर्स, तो क्या ऐसा है कि ऑल इल्यूजन्स आर स्क्वायर, डेफिनेटली नॉट, सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल लॉग्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर पेपर्स एंड नो पेपर इज वुडन, नो पेपर इज वुडन, तो ऑल लॉग्स आर ट्रीज यानी कि लॉग्स विल बी इनसाइड द सेट ऑफ ट्रीज, सम ट्रीज आर पेपर्स यानी कि ट्रीज एंड पेपर्स में सम पार्ट विल बी कॉमन, एंड देन नो पेपर इज वुडन यानी कि पेपर और वुडन में there will be a cross between the two sets, ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बना। पहला कंक्लूजन, सम लॉग्स आर नॉट वुडन, सम लॉग्स आर नॉट वुडन, क्या ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है सम पेपर्स आर नॉट ट्रीज, क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट होगा, थिंक अबाउट इट, कि सम लॉग्स आर नॉट वुडन एंड सम पेपर्स आर नॉट ट्रीज, तो क्या हम वुडन का डायग्राम बना सकते हैं, डेफिनेटली, कि जो कि पूरा का पूरा हमारा लॉग्स के अंदर चला जाए, या लॉग्स का पूरा सेट वुडन के अंदर चला जाए, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना सकते थे कि हमने लेटर से ये वुडन का डायग्राम बनाया, दिस इज वुडन, अब अभी भी बिटवीन वुडन एंड पेपर देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, बट पूरा का पूरा लॉग का सेट इनसाइड वुडन आ गया, ठीक है। सो क्योंकि पेपर और वुडन के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, बट वुडन और लॉग में तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ऑल ऑफ द लॉग कैन बी इनसाइड वुडन, ऑल ऑफ द वुडन कैन बी इनसाइड लॉग, ठीक है, ये भी पॉसिबल था कि वुडन पूरा का पूरा इनसाइड द लॉग चला जाता, ये भी पॉसिबल था, ऑल पॉसिबिलिटीज आते हैं। पॉसिबिलिटीज कहाँ पे नहीं रहेंगी, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है कि पेपर एंड वुडन में देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, तो डेफिनेटली अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं लेटर से, तो दिस पार्ट, इन दिस पार्ट देयर कैन नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ वुडन, ये तो पक्की बात थी, बट इसके अलावा कहीं पे भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, तो सम लॉग्स आर नॉट वुडन, दिस इज नॉट अ कंक्लूजन, पॉसिबल है, कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल डेफिनेटली है बट कंक्लूड नहीं कर सकते। सम पेपर्स आर नॉट ट्रीज, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगेन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ट्रीज आर पेपर्स, वी आर सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, बट आर वी सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस पार्ट, दिस कैन ऑल्सो नॉट बी कंक्लूडेड, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्या ये बेसिक बातें, और अच्छे सवाल लिए मैंने इसीलिए कि ताकि तुम्हें सारी सारी बातें क्लियर हो जाएं, तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हम दोनों ही स्टेटमेंट को कंक्लूड नहीं कर सकते, पॉसिबल अगेन है बट कंक्लूड नहीं कर सकते, डेफिनेटली दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ आर पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, अगर लिखा होता सम लॉग्स कैन बी नॉट वुडन, दैट इज पॉसिबल, सम लॉग्स कैन बी वुडन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सम पेपर्स आर नॉट ट्रीज, तो दिस इज पॉसिबल बट नॉट अ कंक्लूजन, कंक्लूजन तब होगा जब हमेशा हो, ठीक है, जब दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस कैन बी पॉसिबल, दैट इज वाई पॉसिबिलिटी में सही होता बट कंक्लूजन में दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द स्टेट ऑल एफिशिएंट मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सम ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर नॉट क्रिएटिव, और फिर इन्फरेंस में हमें चार स्टेटमेंट गिवन, आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट, ऑल एफिशिएंट मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड सम ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर नॉट क्रिएटिव, अब लिखा है स्टेटमेंट की तरह, बट ये भी क्वेश्चन है सिलोजिज्म का ही कि ऑल एफिशिएंट मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, देयर इज अ सेट ऑफ एफिशिएंट मैनेजर्स and they are all inside the set of organized. Some organized people are not creative. Some organized people are not creative. तो या तो ऑर्गेनाइज्ड और नॉट क्रिएटिव वाला सेट बना लो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और नॉट क्रिएटिव का सेट बना लिया, ऐसे डायग्राम बना दिया, दिस इज द सेट ऑफ नॉट क्रिएटिव, तो सम ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर नॉट क्रिएटिव, यानी कि दिस पार्ट वी आर डेफिनेट अबाउट। अब इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, पहला इन्फ्रेंस, ऑल एफिशिएंट मैनेजर्स आर क्रिएटिव, क्या ये कह सकते हैं पक्के से, ठीक है, या तो ये डायग्राम बनता, या फिर ऐसा बनाते हैं कि एफिशिएंट मैनेजर्स ऑर्गेनाइज्ड, और क्या लिखा है, सम ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर नॉट क्रिएटिव, यानी कि सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड दे आर नॉट क्रिएटिव, ये क्रॉस मार देते हैं, ठीक है। ऑल एफिशिएंट मैनेजर्स आर क्रिएटिव, क्या ये नेसेसरी है, नहीं है भाई, कंक्लूड नहीं कर सकते। सम एफिशिएंट मैनेजर्स आर नॉट क्रिएटिव, क्या ये नेसेसरी है, सम डेफिनेटली आर नॉट क्रिएटिव, भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पूरा का पूरा सेट यहीं पे आया था, बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। नो एफिशिएंट मैनेजर इज क्रिएटिव, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते कंक्लूड ये भी, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉसिबल हैं बट कंक्लूड नहीं कर सकते। लास्ट स्टेटमेंट, सम पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव आर ऑर्गेनाइज्ड, सम पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव आर ऑर्गेनाइज्ड, तो ये तो बेसिकली हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वही कह रहा है
कि सम ऑर्गेनाइज पीपल आर नॉट क्रिएटिव, ठीक है, तो सम पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव आर ऑर्गेनाइज, डेफिनेटली ये तो बस यही बात है, जंबल करके कर रहा है कि सम नॉट क्रिएटिव आर ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is saying India's GDP growth rate has slowed down to 5% this quarter. However, the service sector has shown a robust growth of 9%. So GDP growth rate has slowed down to 5% this quarter, but however, the service sector has shown a robust growth of 9%. तो सर्विस सेक्टर ग्रो किया है 9% से, और ओवरऑल ग्रोथ हुआ है हमारा जीडीपी का, दैट इज बाई 5%. इन्फ्रेंसेस, फर्स्ट इन्फ्रेंस, सर्विस सेक्टर इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी. यहाँ पे बात ग्रोथ की नहीं कर रहा है, बात कर रहा है हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की. आर वी सर्टन अबाउट दैट? वी हैव नो आइडिया अबाउट अदर सेक्टर्स, दे माइट हैव बीन द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते. पॉसिबल हो सकता है बट कंक्लूजन नहीं हो सकता. Second, both manufacturing and agriculture sectors must have grown at a rate significantly lower than 5%. Option B, both must have grown at a rate significantly lower than 5%. Option C, the manufacturing and agriculture sectors together must have performed poorly or grown at a rate significantly lower than 5%. ठीक है, और फिर ऑप्शन डी, नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन. नाउ बिटवीन बी एंड सी विच वन शुड बी करेक्ट? टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट. बी कह रहा है बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट हैव ग्रोन एट अ रेट सिग्निफिकेंटली लोअर देन 5%. अब देखो एवरेज हमारा 9% आया है, सॉरी एवरेज 5% आया, 9% नहीं, एवरेज 5% आया, सर्विस सेक्टर ग्रो किया 9% से. ठीक है, दिस इज अवर 5% इज अवर एवरेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स. भाई एवरेज ग्रोथ रेट है ये, ग्रो, ठीक है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है, और 9% आया है फॉर सर्विस सेक्टर. तो फॉर अदर सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, द ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट विल बी डेफिनेटली लेस देन 5%. तो अगर दोनों का क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट शुड बी लेस देन 5%, क्योंकि एवरेज 5 आया है तो एक वैल्यू 5 से बड़ा है, दूसरा 5 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी लेस देन 5. बट नेसेसरी नहीं है कि दोनों का सेपरेटली ग्रोथ रेट शुड ऑल्सो बी लेस देन 5. दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मे बी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैन बी लेट अस से 4%, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस माइट बी 10% और एनी वैल्यू. ठीक है, वी डेफिनेटली नीड एटलीस्ट वन वैल्यू लेस देन 5%, बट दोनों वैल्यूज लेस देन 5% हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा उनके रिस्पेक्टिव वेटेज पे कि किसका कितना वेटेज है, और उसके बारे में क्वेश्चन कहीं पे भी बात नहीं कर रहा है. सो दैट इज वाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बी कह रहा है बोथ must have grown at a rate significantly lower than 5%, और सी कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स टुगेदर मस्ट हैव परफॉर्म पुअरली और ग्रोन एट अ रेट सिमिलरली लोअर देन 5%. तो टुगेदर की बात कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा और बी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बी कह रहा है दोनों ने 5% से कम का ग्रोथ रजिस्टर किया होगा. दैट इज वाई हमारा एवरेज 9%, सॉरी एवरेज 5% आया है. तो डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी करेक्ट. पॉसिबल है, करेक्ट हो सकता है, बट इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते. इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं सी के लिए. सी इज अवर करेक्ट स्टेटमेंट दैट टुगेदर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट हैव परफॉर्म्ड पुअरली और ग्रोन एट अ रेट सिग्निफिकेंटली लोअर देन 5%. ठीक है, हालांकि थोड़ा पुअरली भी यहाँ पे मेंशन जो है थोड़ा गड़बड़ तरीके से कर दिया, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल अगर टुगेदर बात करें तो दे मस्ट हैव ग्रोन एट अ रेट सिग्निफिकेंटली लोअर देन 5%. ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा जरूर है, परफॉर्म पुअरली नहीं मेंशन होना चाहिए था आइडियली. ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, थोड़ा ये परफॉर्म पुअरली वाला पंगा रह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन डी में नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन इज ऑल्सो गिवन. बट लॉजिक क्लियर होगा कि यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, बिकॉज टुगेदर दे आर ग्रोइंग एट अ रेट लोअर देन 5%. ठीक है, ये पार्ट नहीं मेंशन होना चाहिए था. सच क्लियर. तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में. अब जो भी मैंने डिस्कस किया वो आई बिलीव तुम्हें क्लियर हुआ होगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस में बातें समझ में आएंगे. फिर भी कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. एंड if you have liked this session, then make sure you hit the like button as well. That's all. Bye bye. Take care and keep learning.